anti-narcotic cell of Goa Police. It has been regularly conducting a lot of raids, and it has busted a large number of drug cartels in Goa. And in continuation of this, we have achieved a major success on 14 when a raid was conducted, and we have arrested one African national by the name of Faith, who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa. And from her possession, we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that uh, this model, this lady, was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her, we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the anti-narcotic cell police station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady. And as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे. Till any time you have found anyone who is a supplier. Sorry. Till date you have found anyone is a supplier. मतलब इस केस में No, in previous case or any. बिल्कुल, इसके अंदर हम काफी केसेस के अंदर हमने सप्लायर्स को पकड़ा है और उनको हिरासत में भेजा है, और सब केसेस के अंदर हम लोग जो सप्लायर है उसको पकड़ने पे ही हमारा जोर रहता है. नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से देयर इज we have not found any offense which is registered, but we are checking with Bangalore police because she was coming from Bangalore. जो इन्होंने इनिशियल अपनी इंटेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के जरिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी. तो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच. We are trying to get details about all these things, but so far we have not found any case registered against her. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि she is a Nigerian national who came to India on a student visa in 2022. Initially, she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University. But she has revealed that she did not join the program. Instead, she went to Bangalore, and in Bangalore she started working in doing all kinds of activities. And तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक. Since she is a foreign national, the links could be local, domestic, as far as the country is concerned. तो जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके अंदर डोमेस्टिक लिंक्स क्या हो सकते हैं और भी क्या लिंक्स हो सकते हैं. उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है. वी डोंट लीव एनी साइड which is not left undetected. इसके पहले भी हाँ, वीजा इज वैलिड. इसके पहले भी कुछ कार्रवाई किए गए थे, तो कार्रवाई में कुछ लिंक्स पाए गए थे. इसके पहले मतलब इसके पहले भी वो पुलिस ने कार्रवाई की गई थी ऐसे नाइजीरियन के साथ, और कुछ लिंक्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे भी कनेक्शंस, मोपा एयरपोर्ट पे भी कुछ ऐसे ड्रग्स पकड़े गए, तो इनका कुछ कनेक्शंस है, कुछ मिला है केस के बारे में. नहीं, अभी मैं इसी केस के ऊपर ही चर्चा करने के लिए आया. सर, आपने कहा स्टूडेंट वीजा पे देते हैं, शी इज अ जेन्युइन स्टूडेंट, और कैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपना वीज़ा मांगा था और उनको भारत सरकार ने दिया था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये जाके इन्होंने कभी भी लखनऊ में एडमिशन नहीं लिया, और अभी तो उन्होंने बताया कि लखनऊ गई भी थी कभी. इंस्टेड ये दिल्ली से बैंगलोर की कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद शी केम टू बैंगलोर एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर.
सर बहुत से ऐसे केस है जिसमें ऐसे स्टूडेंट वीजा वाले नाइजीरियंस इससे पहले भी हो चुके, तो वो कुछ लिंक ऐसा कुछ मिलता है उसमें कि कोई कॉमन हो? इस पे mention किया। So there is any system like this? They are coming with a student visa and started doing like this business over here. So there is any track of the department to catch like these people? नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने लैंड दिल्ली में किया, दिल्ली के बाद वो बैंगलोर गई, जब बैंगलोर से वो एक ड्रग्स लेके गोवा में आई तो हमारी गोवा पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया। ये तो दिखाता है कि देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बीन एबल टू गेट सक्सेस। Sir, since दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट केस स्टडी। So since this is a drug issue, we would like to know like how the police are working as far as this drug issue which are reached in the village areas, because there have been concerns, the issues which have been raised because the drugs they have reached to the village areas, young kids. So how the police are working on this, especially in all the police stations? So we work on a multi-pronged approach. There are broadly two approaches which we follow. One approach is what जिसके लिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, which is the approach of enforcement. कि जहाँ पे भी हमें दिखता है कि कोई इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है, उसको वो हम उस पे जो भी सख्त के सख्त कार्रवाई है वो हम करते हैं और अरेस्ट करके उनको सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं। Sir, last खत्म करता हूं। जो उसका दूसरा अप्रोच है वो एजुकेशन का है, अवेयरनेस का है, और उसके अंदर भी एएनसी रेगुलरली एजुकेशन की ड्राइव्स करता है जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल माने तो जो हमें लगता है कि वो ऐसा एज ब्रैकेट में है जहाँ पे टेंडेंसी हो सकती है ऐसी चीज़ों पे थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाने की, तो वहाँ पे हमारी टीम जाके उनको प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस देती है कि बिल्कुल ये ड्रग से दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, इस सबकी जानकारी उनको हम देते हैं। जी सर लास्ट 6 मंथ्स सर लास्ट 6 मंथ्स से क्या ड्रग्स का केस इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ सर? इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस AMC is doing detection, and they are not tiny detections, they are very substantial detections which are happening.